Hello everyone. Today I am going to start our next chapter 5, Indian temple sculptures. Time period is 6 to 13th century AD. Let us discuss about sculpture. Sculpture is a three-dimensional form of visual art. It includes the art of carving, constructing, casting or molding in stone, wood, metal, fiber, etc. जो स्कल्पचर हैं वो 3D फॉर्म में होते हैं जिसमें कार्विंग कास्टिंग की जाती है। ये स्टोन के, वुड के, मेटल के या फाइबर के भी होते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। नियरली एवरीवन हु विजिट इंडिया और साउथ इंडिया इन पर्टिकुलर रिटर्न्स विद एन इम्प्रेशन दैट इट इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। जिसने भी इंडिया को या फिर स्पेशली साउथ इंडिया में विजिट किया हो उनका मानना यही है कि इट इज़ अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। South India is dotted with a great number of temples. Many of them are ancient and have become places of pilgrimage. साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो एंशियंट टाइम के ही बने हुए हैं। Apart from the cities, a good number of towns or villages have 2 or more temples each. अगर हम cities के अलावा towns और villages की बात करें तो वहाँ पर भी 2 और 3 temples जो हैं वो बने हुए हैं। Next is, in ancient times, the making of Indian sculptures was begun for the decoration of temples. Ancient time में इंडियन स्कल्पचर्स जो हैं वो टेम्पल्स की डेकोरेशन के लिए बनाए जाते थे। दिस प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम रॉक कट टेम्पल स्कल्पचर टू ह्यूज रथास विच फाइनली लेड टू द लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। इनकी स्टार्टिंग रॉक कट टेम्पल से ह्यूज रथा तक पहुंची जिसमें से जो स्ट्रक्चरल आर्ट है उसको प्रमोट किया गया। इट ऑल बिगेन विद द गुप्ता आर्ट 4 to 6 century, though we have found evidence of such shrines before that also. इसकी स्टार्टिंग गुप्ता आर्ट से हुई लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ श्राइन्स मिली हैं, कुछ एविडेंस भी मिले हुए हैं। बाय द एडवेंट ऑफ 8th century, this temple building took all over India like Pals in the east, Cholas and Palwas in the south, Rashtrakutas and Chandelas in the central India built temple of various architectural styles from 8th to 10th century. इन सब ने भी 8th to 10th century तक various architectural styles में temples बनवाए थे। After this, विजयनगर, Mysore, Rajasthan, Bengal and in Odisha also constructed such type of temples till 12th century. इसके बाद विजयनगर, मैसूर, राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा में भी 12th century तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स जो हैं अलग अलग टाइप्स के जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए थे। इन शॉर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 AD of Christian era, this architectural or structural temple art reached its climax till the construction of Meenakshi temple and Rameshwaram temple. We can say that the principles that were adopted and built these temples, these were based on Vastu Shastra. इन टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए दैट वर बेस्ड ऑन वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही जो टेम्पल्स हैं वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। देयर आर 2 types of Indian temple structure. First is Nagada. Nagada style based on which temples of North India were built, and Dravida style based on which temple of South India were built. Apart from this, another style that developed as an independent style, it was a mixed from a Nagada
and Dravida, that is known as Vesara style. Clear? वेसारा स्टाइल नगाड़ा स्टाइल का और द्राविड़ा स्टाइल का मिक्सचर है. नेक्स्ट इज टेम्पल स्कल्पचर iconography. Iconography has an important role in India temple sculpture. Let us know about it. Iconography means the symbolic representation attached to an image or images. In this case, it is of the god, goddesses and other mythical beings related to them. Iconography means किसी भी एक सिंगल इमेज का या बहुत सारी इमेजेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? नेक्स्ट इज characteristics of Indian temple sculpture. Temples comprise of elaborate sculptures and ornaments that were carefully planned at their very beginning. इन temples में sculpture और ornaments को carefully plan किया गया है. River goddesses are found at the entrance in a Nagada temple. Nagada temple में की एंट्रेंस में हमें रिवर गॉडेस जो है वो देखने को मिलती है. वहां पर रिवर गॉडेस को बनाया गया है. एंड द्वारपाल्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द गेटवे और गोपुरम ऑफ द्रविड़ा टेम्पल्स. और द्रविड़ा टेम्पल्स के गेटवे पे या फिर जिसको गोपुरम भी बोला जाता है वहां पर द्वारपाल्स जो हैं वो बनाए गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज सिमिलरली इरोटिक इमेजेस Navgrah and Yaksha are also placed at the entrance as guard. Erotic images, Navgrah और यक्षा figures जो हैं वो entrance पे बनाई गई हैं. Various form of the main divinity are made on the outer walls of the chamber. चैम्बर के आउटर वॉल्स के ऊपर जो देवता हैं उनको वेरियस फॉर्म में बनाया गया है. श्राइन्स अराउंड द मेन टेम्पल आर डिवोटेड टू द फैमिली और इनकारनेशन ऑफ द मेन गॉड. जो मेन गॉड जी की जो फॉर्म बनाई गई है उनके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड या फिर उनकी फैमिली से रिलेटेड वहां पर जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाए गए हैं श्राइन्स में. Next, first is descent of Ganga, very important. Medium stone, period circa 7th century AD, dynasty Palwas, location Mahabalipuram, Tamil Nadu, courtesy Archaeological Survey of India, theme or subject matter a bas relief also called as low relief sculpture depicting the legend of the fall of the Ganges from heaven. Description: it is a low relief sculpture made by Pallava Emperor. The time period of this sculpture is assumed during 7th to 8th century. This sculpture is a living scene of the descent of Ganga from heaven to earth. ये लो रिलीफ स्कल्पचर बनाया गया है पलवा के टाइम पर. इसका जो टाइम पीरियड है, इस स्कल्पचर का जो टाइम पीरियड है वो अज्यूम किया जाता है 7 to 8 सेंचुरी का है. और इस स्कल्पचर में गंगा को हेवन से अर्थ की ओर आते हुए ये वाला जो सीन है ये बनाया गया है. अ bearded, thin and starving Bhagirath, wearing deerskin, stands one-legged praying to Shiva, and Lord Shiva is standing upward in the posture giving a boom. The smaller Gana or dwarf are created under his hand. See the sculpture. यहाँ पर भगीरथ को बनाया गया है जो कि एक लेग के ऊपर खड़े हुए दिखाए गए हैं. ये बहुत ही पतले बनाए गए हैं और इनकी दाढ़ी और मूछें भी बनाई गई हैं जो कि लॉर्ड शिव जी की प्रे कर रहे हैं. इनके साथ ही यहाँ पर लॉर्ड शिव जी को बनाया गया है जो कि उनको वरदान देते हुए दिखाए गए हैं.
लॉर्ड शिव के हैंड के नीचे ही एक द्वार भी बनाया गया है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, on the waterfall cliff, goddesses Nagraj and his queens, they are created like they are running to see the amazing view of landing of Ganga. There was a huge roar at the time of Ganga's descent and the scene shows Ganga crossing from the clouds. See, यहाँ पर सेंटर में एक दरार बनाई गई है जिसमें नागराज और उनकी क्वींस को इस तरह से बनाया गया है कि वह लैंडिंग ऑफ गंगा इस अमेजिंग व्यू को दौड़ते हुए देखने आ रहे हैं। इस सीन में गंगा को क्लाउड से होते हुए नीचे उतरते हुए बनाया गया है। The goddesses are shown kept their hands on ears because of the thunder. goddesses को अपने ears पर हाथ रखे हुए बनाया गया है। They seem flying as their legs are bent. उनकी जो legs हैं वो पीछे की ओर मुड़ी हुई हैं, इस तरह से लग रहा है जैसे ये flying figures बनाई गई हैं। यहाँ पर ये जो flying figures हैं वो बनाई गई हैं। Also seen are pairs of half bird, half human figures, possibly kinnars और गंधर्वास। पेयर ऑफ हाफ बर्ड्स हाफ ह्यूमन वाली फिगर्स भी बनाई गई हैं जो कि माना जाता है किन्नर्स और गंधर्वास की बनाई गई हैं। थर्ड पॉइंट इज देयर इज अ ग्रुप ऑफ योगीज इन द लेफ्ट साइड हु आर वर्शिपिंग इन द पलवा टेम्पल। One of them is in a meditation posture while two other yogis are in front of him. See, यहाँ पर पलवा टेम्पल के बीच में एक योगी को मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है और इनके फ्रंट साइड पर ही दो योगी और भी बनाए गए हैं। Fourth point, the rest of the rock is covered with other life forms, gods, goddesses, human, animals, big or small. अदर बाकी जो रॉक है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बनाई गई हैं, गॉड गॉडेसेस की, ह्यूमन की, एनिमल्स की, चाहे वो बिग हैं या फिर स्मॉल हैं। अ फैमिली ऑफ एलिफेंट्स इज सुपर्ब इन इट्स अमेजिंगली वेल मॉडल्ड life-like detail. The giant male elephant is followed by the smaller female elephant with calves sheltered between their legs. एक एलिफेंट फैमिली बनाई गई है। सबसे पहले मेल एलिफेंट बनाया गया है जिसके पीछे फीमेल एलिफेंट बनाई गई हैं और इस फीमेल एलिफेंट के बीच में लेग्स के बीच में एक स्मॉलर एलिफेंट जो है वो बनाया गया है। फिफ्थ पॉइंट, two lions at the ends of the relief are especially symbolic. इस रिलीफ के एंड पर 2 lions बनाए गए हैं as the guardians of the entrance. An interesting carving in the relief is that of an ascetic cat standing on one leg, intending to eat the innocent mice playing around him. इस रिलीफ में एक कैट को वन लेग के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है जो कि मेडिटेशन करते हुए इसको दिखाया गया है। इसके आसपास एक इनोसेंट माइस को खेलते हुए भी दिखाया गया है। All figures are very well maintained and in perfect balance in the sculpture. In addition, it has a good performance of volume, ratio and depth. Next sculpture name is Trimurti, medium stone rock cut high relief sculpture, period circa 9th century AD, dynasty Rashtrakutas,
Location: Elephanta near Bombay, Maharashtra. Courtesy: Archaeological Survey of India. Theme or subject matter: the three-faced sculpture of three facets of Lord Shiva. इस स्कल्पचर में शिव जी के थ्री फेसेस जो हैं वो दिखाए गए हैं. डिस्क्रिप्शन: फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ रॉक cut high relief sculpture in which three faces of Lord Shiva are shown. ये जो हाई रिलीफ स्कल्पचर है ये बनाया गया है लॉर्ड शिव का, जिसमें थ्री फेसेस उनके दिखाए गए हैं. सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ ब्यूटिफुल आइलैंड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई. देयर आर इलोरा केव स्टाइल टेम्पल्स known as Elephanta Cave Temples. मुंबई से 10 किलोमीटर अवे एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जहां पर इलोरा केव स्टाइल्स की तरह ही टेम्पल्स बनाए गए हैं, जिसको एलिफेंटा केव्स टेम्पल्स जो है वो बोला जाता है. थर्ड पॉइंट, दीज आर मेनली फेमस फॉर दिस थ्री मूर्ति ऑल्सो नोन एज सदाशिव और महेश मूर्ति स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा. ये जो त्रिमूर्ति है इसको सदाशिव और महेश मूर्ति के नाम से भी ये फेमस है. सी द स्कल्पचर. It is not whole body sculpture of Lord Shiva, but it is of his face sculpture which reveals the mystery of Hindu religion. See, इस स्कल्पचर के सिर्फ फेसेस ही बनाए गए हैं, पूरी बॉडी नहीं बनाई गई है, जो कि हिंदू रिलीजन की मिस्ट्री को रिवील करती है. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, द सेंट्रल हेड ऑफ त्रिमूर्ति represents the aspect of meditation towards God. त्रिमूर्ति का सेंट्रल हेड गॉड की मेडिटेशन के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. It has Shiva as a yogi who are sitting in meditation for the welfare of humanity and praying to God. ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर शिव जी को एज अ योगी पोजीशन में मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है. शिवा इज इन अ वेरी काम स्टेट लाइक लॉर्ड विष्णु. शिव जी को लॉर्ड विष्णु की तरह काम एक्सप्रेशन इनके फेस पर देख सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट, द राइट फेस ऑफ द स्कल्पचर इज द फॉर्म ऑफ अघोर भैरव लुक्स ऑसम. जो राइट फेस है इस स्कल्पचर का वो अघोर भैरव का है. इट डिपिक्ट्स शिवा एज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हु विल मेक द वर्ल्ड एशेस विद हिज एंगर. ये जो स्कल्पचर है थर्ड फेस है, शिव जी को एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, जो कि अपने एंगर से वर्ल्ड को एशेस में बना देगा. इट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्री एक्सप्रेशन ऑफ एन एडल्ट मेल विद अ मोस्टैच. इसमें जो एंग्री एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लेफ्ट फेस इज एज अ फॉर्म ऑफ फेमिनाइन एस्पेक्ट और शिव शक्ति विच इज कनेक्टेड विद द एनर्जी दैट क्रिएट्स द वर्ल्ड. जो लेफ्ट फेस है वो फेमाइन एस्पेक्ट या शिव शक्ति का है, जो कि वर्ल्ड की क्रिएट होने की एनर्जी से कनेक्टेड है. इट शोज अ पर्सन's sensual life and their energy. It has something like a rose or lotus in his hand which symbolize life and creativity. इनके हैंड में रोज या लोटस पकड़ा हुआ है, जो कि लाइफ और क्रिएटिविटी का सिंबल है. This sculpture has a broken right hand, something holding in its left hand. इस स्कल्पचर का जो राइट हैंड है वो ब्रेक हो चुका है और जो लेफ्ट हैंड है उसमें
कुछ इन्होंने पकड़ा हुआ है। इन त्रिमूर्ति द फेस रिप्रेजेंट्स लॉर्ड ब्रह्मा और द क्रिएटर, द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। जो ये फेस है, लेफ्ट साइड वाला फेस है, ये ब्रह्मा और क्रिएटर का माना जाता है। उस तरह के ये फेस बनाया गया है और जो कि लॉर्ड शिव की फेमिनाइन फॉर्म है। इन द एंड, creating these faces together with different expressions is the greatest achievement of this sculpture. Clear?